ભાજપના સાંસદ નિશિકાંત દુબે છેલ્લા ઘણા સમયથી ચર્ચામાં રહ્યા છે, પણ હવે એમની મુસીબત ઓછું થવાની નામ નથી લેતી। એટલું જ નહીં, દિલ્હી ખાતે તેમના વિરોધમાં એક વિરોધ પ્રદર્શન પણ કરવામાં આવ્યું છે અને કોંગ્રેસ નેતાઓના એક બાદ એક નિવેદનો પણ સામે આવી રહ્યા છે। શું છે સમગ્ર વિષય જોઈશું આજના વિડીયોમાં। નમસ્કાર, હું હંસિની અને તમે જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ। સુપ્રીમ કોર્ટ અને સીજેઆઈ સંજીવ ખન્ના પર વિવાદાસ્પદ નિવેદનો આપ્યા બાદ મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા ભાજપના સાંસદ નિશિકાંત દુબેની મુશ્કેલીઓ હવે વધુ વધી ગઈ છે। સુપ્રીમ કોર્ટે આ મામલે કાર્યવાહી કરી છે અને તેને આગામી અઠવાડિયે લિસ્ટ કર્યા છે। વકીલોએ નિશિકાંત દુબે સામે અવમાનોના કેસ દાખલ કરવા માટે એટર્ની જનરલ પાસેથી સંમતિ માંગી છે અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં નિશિકાંત દુબેના નિવેદનોનો ઉલ્લેખ કરતા વકીલે કહ્યું કે સરકાર આ મામલે કંઈ જ કરતી નથી। હવે આ વિવાદ શું છે, સૌથી પહેલા તો એને સમજી લઈએ। દુબેએ ન્યાયતંત્રની સત્તાની યોગ્યતા અને મર્યાદાઓ પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટે તેની મર્યાદાઓથી આગળ વધી રહી છે। તેમણે કહ્યું કે કોર્ટ સંસદ દ્વારા પસાર કરાયેલા કાયદાઓને રદ કરી રહી છે અને રાષ્ટ્રપતિને પણ સૂચનાઓ આપી રહી છે કે સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશોની નિમણૂક કરે છે। તેમણે સવાલ કર્યો કે તમે નિમણૂક કરનારને કેવી રીતે સૂચના આપી શકો છો। સાથે જ કહ્યું કે બંધારણની કલમ 368 હેઠળ કાયદા બનાવવાનું કામ સંસદનું છે અને કોર્ટની ભૂમિકા કાયદાનું અર્થઘટન કરવાની છે। તેમણે કહ્યું કે જો દરેક કામ માટે સુપ્રીમ કોર્ટ જવું પડતું હોય તો શું સંસદ બંધ કરી દેવી જોઈએ। ભાજપના સાંસદે વધુમાં એમ પણ કહ્યું હતું કે જો દરેક વસ્તુ માટે કાયદા બનાવવામાં આવ્યા છે તો સુપ્રીમ કોર્ટ ક્યાંથી અને કેવી રીતે નવો કાયદો બનાવી રહી છે। તેમણે સવાલ કર્યો કે સંસદના આદેશોનો કાયદો બનાવે છે, શું તમે સંસદને સૂચના આપશો। અહેવાલો અનુસાર જો વાત કરવામાં આવે તો ભાજપના સાંસદ નિશિકાંત દુબેએ કહ્યું છે કે ભારતમાં ગૃહ યુદ્ધ માટે સીજેઆઈ ખન્ના જવાબદાર છે। ત્યારબાદ આના પર વકીલે કહ્યું કે મેં ફાઇલ કરી દીધી છે, હું ડાયરી નંબર આપી શકી છું અને તેની પછી પણ વકીલે કહ્યું હતું કે ભાષણ વાયરલ થયા। સુપ્રીમ કોર્ટ વિરુદ્ધ સોશિયલ મીડિયામાં પણ ઘણા બધા વિવાદાસ્પદ નિવેદનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે। એટલું જ નહીં, આ દરેક નિવેદનબાજીઓના વચ્ચે હવે દિલ્હીમાં ક્યાંક તેમના જ વિરુદ્ધ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું। સૌથી પહેલા તો એ દ્રશ્ય ઉપર પણ નજર કરીએ। भाइयों अरे भाई निशिकांत है, निशिकांत दुबे मुर्दाबाद, निशिकांत दुबे मुर्दाबाद, निशिकांत दुबे मुर्दाबाद। देश चलेगा संविधान से और बीजेपी की तरफ से कोई चूक नहीं करता। भारत के संविधान से मत दो यार। अगर आप इस देश की न्याय व्यवस्था की इज्जत नहीं कर सकते और बरकरारी का काम आप करोगे पब्लिक को, बहुत शर्म की बात है। और आज हमने संविधान की कॉपी निशिकांत दुबे जी को देने के लिए जा रहे हैं। इसने हमें यहाँ पर रोका है और हम चाहते हैं कि ये संविधान की कॉपी निशिकांत जी इसको देखें और पढ़ें, क्योंकि ये भारत देश इस संविधान से चलेगा, ना कि संघ के विधान से चलेगा। देश चलेगा संविधान से। देखिए, हमारी मांग है सबसे पहले कंटेम्प्ट का मुकदमा जारी होना चाहिए निशिकांत दुबे के खिलाफ। और जैसे उन्होंने उच्च न्यायालय का अपमान किया है, मुख्य न्यायाधीश का अपमान किया है, बीजेपी उनको तुरंत सस्पेंड करे। एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा, ये देश के लिए ठीक नहीं है और ये देश इस संविधान से चलेगा, ना कि आरएसएस के विधान से चलेगा। इंदिरा गांधी ने भी अपनी मर्जी से सरकार बदलनी है।
अगर बात मर्जी से लगाने की है, ऐसी कई बातें आज से पहले इतिहास में हुई है। इमरजेंसी की बात थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सदन के पटल में आके अपनी गलती मानी थी, और आज इस 21वीं सदी में अगर निशिकांत दुबे जैसे देशद्रोही सांसद ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो यूथ कांग्रेस उसका कड़ा विरोध करेगी। फोटो ले लो। એટલું જ નહીં, કોંગ્રેસના નેતા આ વિષયને લઈને શું કહી રહ્યા છે તે પણ સાંભળીએ। भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार अंग्रेजी हुकूमत की तरह है। अंग्रेजों ने भी नेशनल हेराल्ड से प्रतिशोध लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस नेशनल हेराल्ड, जो कि आज़ादी के आंदोलन का अखबार था, उसे प्रतिबंधित कर दिया था। आज वही प्रतिशोध भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और नेशनल हेराल्ड से ले रही है। यंग इंडिया नाम की कंपनी, जिसके माध्यम से राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पर आरोप लगाया है, उसमें सिंगल पैसा भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, 1 इंच भूमि भी ट्रांसफर नहीं हुई। उसी के आधार पर 2015 में ईडी ने इस पे क्लोजर फाइल किया तो ईडी के प्रमुख को मोदी सरकार ने हटा दिया। सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए 2013 में, लेकिन 2016 में स्पेशल जज ने कहा कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर 2016 से लगा है, आप आने की अपेक्षा सिर्फ तारीखें ले रहे हैं। तो स्वामी साहब ने हाई कोर्ट से उस मुकदमे में स्टे ले लिया। 2021 में ईडी ने अलग से एक मुकदमा फाइल किया, लेकिन तथ्य और सत्य कुछ था ही नहीं उनके पास। उन्होंने 10 अप्रैल 2024 को प्रॉपर्टीज को के अटैचमेंट को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से कंफर्म कराया, तो उसमें एक सेक्शन 8(3) पीएमएलए एक्ट 2002 में प्रावधान है कि 365 डेज में आपको चार्जशीट हर हाल में फाइल करनी है। तो उसकी समय निकल रहा था, इसलिए 9 अप्रैल 2025 को उन्होंने चार्जशीट फाइल की। इसमें कोई तथ्य नहीं है। देश का बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है मोदी सरकार। गुजरात में संगठन सृजन हमारा कार्यक्रम जोरों पर है, उससे डर गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो बेरोजगारी का, महंगाई का, चीन के कब्जे का जवाब नहीं देना चाहते। अमेरिका से हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर हमारे नागरिक लाए जा रहे हैं, उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो ये ध्यान भटकाने की टैक्टिक्स मात्र है। मोदी सरकार की जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो हमारे फौलादी इरादों को हिला सके। हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। सर, कल यहीं उदयपुर में अर्जुन राम मेघवाल आए थे, उन्होंने बयान में कहा कि राहुल गांधी और
कांग्रेस इस मामले में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये कहाँ, कौन सा सरकारी, तो क्या हुआ, इतने 10 बरस क्यों लग गए मेघवाल साहब? कहाँ थी आपकी एजेंसियां? कोई साक्ष्य क्यों नहीं जुटा पाए? 2013 से मुकदमा चल रहा है ये, तो क्यों स्पेशल जज को ये कहना पड़ा कि आप तारीखें सिर्फ ले रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी को? क्या आपके पास एविडेंस थे? हमने तो कहा, और बताइए 2015 में क्यों क्लोजर फाइल किया था ईडी ने, आपने क्यों हटा दिया? कचोट साहब को बताइए देश को। तो ये सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं, इनके पास सच्चाई नहीं है। सच जब ये सरकार जाएगी तो इलेक्टरल बॉन्ड के काले कारनामे, पीएम केयर फंड के काले कारनामे और स्टॉक मैनिपुलेशन जो विदेशों की भूमि से, साइप्रस से, यूएई से इनके दोस्त की कंपनियों के लिए कर रहे हैं, वो सारे काले कारनामे खुलेंगे। दुबे जी, ज्यादा तब के निकलेगा खरा सोना निकलेगा? 100% तब के निकलेगा। लेकिन जो परसेप्शन मैनेजमेंट में हमारे खिलाफ ये जो वातावरण बनाया जा रहा है कि हजारों करोड़ की संपत्ति, उस पर हमको बात रखने का अधिकार है। और हमारे मीडिया के साथियों से हम कम से कम ये बात कहने आए हैं कि देश को सच बताइए, तो हम अपने सत्य और तथ्य के साथ आपके सामने आए, और ये हमारा नैतिक दायित्व है। हमने लड़ाई लड़ी है उस अखबार के लिए जिसने देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया है, उसके पत्रकारों की, और आप ही की तरह उनके पत्रकारों के पेंशन और वेतन के पैसे थे जो हमने चुकाए, उन प्रॉपर्टीज़ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टैक्सेस थे जो चुकाए। ये अपराध कैसे हो सकता है? और ये इलेक्शन कमीशन भी गए, उन्होंने कहा कि ये कोई अपराध नहीं है। ये ईडी के पास गए, ईडी ने क्लोजर फाइल किया, अब न्यायालय है। हम 100% आश्वस्त हैं कि इस केस में कोई दम नहीं है, सिर्फ प्रतिशोध लिया जा रहा है। अखबार तो निकल रहा है साहब, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, हाँ उनसे ये जरूर पूछिएगा कहीं मिले कि केनस्टार नाम की कंपनी में भारतीय जनता पार्टी ने पैसा निवेश किया था कि नहीं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ एक राजनीतिक दल कैसे काम कर सकता है? उसका जब कैपिटल गेन आया तो इनकम टैक्स का नोटिस आया, तो देश को पता लगा कि कैपिटल गेन टैक्स का नोटिस आ गया है। तब वो भी बता रहे थे कि हम अखबार निकालते हैं और उस अखबार का लॉस हुआ है। वो अखबार अपने अखबार में पंचजन्य में, ऑर्गेनाइजर में एडवर्टाइजमेंट नहीं लेते हैं क्या सरकार से? बताएं। जब पत्रकारों की वेतन, पत्रकारों की पेंशन, वो कहाँ से आएगी? तो विज्ञापन, वैधानिक डीएवीपी के जो रेट्स हैं उसके आधार पर जो विज्ञापन है वो जायज है, और ऑडिटेड बैलेंस शीट सब चीज़ों की सरकार के पास होती है। सर, राहुल गांधी विदेश में जाके इलेक्शन कमीशन पे बोल रहे हैं, तो वो किस तरह से दिख रहा है? देखिए, अब तो पूरा विश्व एक है, और विश्वव्यापी स्तर पर अमेरिका के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, मोदी जी के दोस्त ट्रंप कह रहे हैं ईवीएम पर भरोसा नहीं है। राहुल એટલે જે પ્રમાણે અત્યારે હાલ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદ નિશિકાંત દુબે ચર્ચાનું કારણ બન્યા છે। લોકો અત્યારે હાલ તેમના વિરોધમાં પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। એટલું જ નહીં, ઘણા બધા કોંગ્રેસી નેતાઓએ તો તેમના ઉપર અનેક એવા આક્ષેપો પણ મૂક્યા છે, અને હાલ તેમના જે આ વિવાદ છે એમાં પણ એમની મુશ્કેલીઓ છે તે વધતી જાય છે। એટલે ખાસ કરીને હવે આ કેસમાં કયો મોટો વળાંક આવશે તે પણ આગામી સમયમાં જોવાનું રહેશે। તમારું શું માનવું છે આ વિષયને લઈને અમને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। તેની સાથે જ અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। નમસ્કાર।